आज हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य और पुष्टि। सो फर्स्ट अगर बात करेंगे फूड लेकर, तो फूड है क्या? फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे खाने के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, हर काम करने के लिए एनर्जी अवेलेबल होती है। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में जो भी कुछ चल रहा है ना, कोई भी प्रोसेसेस चल रहा है, चाहे तो रेस्पिरेशन चल रहा है, हम लोग जो बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, सेल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, हर चीज करने के लिए हम लोग को चाहिए एनर्जी। सो फूड वो सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी देता है। So food is a substance that gives us energy for performing all the body activities, all the processes which are going on in our body, like all the cell activities, all the production of hormones, production of enzymes for different chemical reactions, and at the same time all the life processes which we are performing, like respiration, like we can say that reproduction, all the things we need energy. For all doing all the work we need energy. Now number 2, it builds our body. How? सेल डिविजन में हेल्प करता है। It helps in cell division, so our growth depends on it. हम लोग जो हमारे बॉडी के जो सारे जो ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, काम करते करते कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने सेल्स है, कुछ सेल अपने प्रोसेस में कभी कभी मर जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है, सेल डेथ हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए नया सेल बनता है। और ऐसा भी होता है कभी इंज्योर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए नया सेल बन रहा है, या क्या हो रहा है, किसी ऑर्गन के ग्रोथ के लिए भी नया सेल बन रहा है, सेल डिवीजन होके नया सेल बन रहा है। तो इसके लिए भी क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी चाहिए। तो फूड हमारे बॉडी को बना भी रहा है। कैसे? ये हमारा मसल बिल्डअप कर रहा है, ये हमारा, इससे हमारा खून बन रहा है, हमारा ब्लड बन रहा है। ठीक है ना? तो इट बिल्ड्स आवर बॉडी। नंबर 3, क्या काम करता है? थर्ड वाला काम। थर्ड वाला काम फूड का ये है कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंट डिजीजेस से बचाता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, আমাদের শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখে, বাঁচায়। So this food is a substance which does all this work, all the 3 work. It gives us energy, it helps to build our body, and it also protects us from diseases. 3 works it are doing. Now on the basis of this different works it is doing for our body, so we divide food into 3 types. Those who are giving us energy, they will be called as energy giving. Those who are helping to build our body, they will be called as body building. And those who protect us from diseases, they will be called as protective. So these are the types. We can say this is the classification also, classification of food. माने
যে খাবারগুলি আছে, খাদ্যগুলি আছে, তাদেরকে যদি আমি 3টি শ্রেণীতে ভাগ করি তাদের কাজের ওপর নির্ভর করে, তাহলে প্রথম ভাগটা যেটা পাই সেটা হচ্ছে এটা আমাদের দিচ্ছে শক্তি, এনার্জি দিচ্ছে। দ্বিতীয়টা দেখছি আমাদের শরীরের বিভিন্ন অর্গান, বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন পার্টকে তৈরি করছে, ইট বিল্ডস আওয়ার বডি। নেক্সট থার্ডটা হচ্ছে আমাদের শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচায়। সো ইট গিভস আস এনার্জি, বিল্ড আওয়ার বডি অ্যান্ড প্রোটেক্ট আস ফ্রম ডিজিজ। এখন এর ওপর নির্ভর করে আমরা দেখছি যারা আমাদের এনার্জি দিচ্ছে বা শক্তি দিচ্ছে তাকে বলছে এনার্জি গিভিং। ওকে, আচ্ছা, যারা আমার শরীরটাকে তৈরি করছে তাদেরকে বলছি আমরা বডি বিল্ডিং। থার্ডটা হচ্ছে যারা আমাদের রক্ষা করছে, প্রোটেক্টিভ। So these are the 3 types: energy giving food, body building food and the protective food. So we got understand that. Now we will discuss one by one. Let's see. अभी बात करेंगे एक एक करके। पहला जो है कैटेगरी उसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। অর্থাৎ শক্তি প্রদানকারী যে খাদ্য, जो हमें शक्ति दे, जो हमें एनर्जी देते। अभी देखते हैं फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड। तो कौन सा खाने से एक्चुअली हमें प्रोटीन से भी एनर्जी मिलता है, पर वो उसका मेन काम नहीं है। मेन काम कौन सा वाला न्यूट्रिएंट का एनर्जी देना होता है। 2 होता है, एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है फैट। अब स्टोरी ये है, कार्बोहाइड्रेट का क्या एग्जाम्पल है, जैसे आप चपाती खाते हो, ब्रेड खाते हो, आप शुगर लेते हो, वो सब कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कोई भी सीरियल्स हो, ये वो सीरियल नहीं जो आप टीवी में देखते हो, ये वो सीरियल है जो हम सीड्स ऑफ द प्लांट्स है, जो हमारे स्टेपल फूड बनता है जिससे। तो सीरियल्स में जैसे राइस, व्हीट, ओके, तो ये सब सीरियल्स, तो सीरियल्स में होता है, ठीक है, शुगर में होता है, जैगरी में होता है, गुड़। तो ये एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट। अभी हम देखेंगे फैट का एग्जाम्पल। ये तो बहुत ही इजी है। फैट का एग्जाम्पल क्या है? फैट का एग्जाम्पल है ऑयल, घी, बटर, नट्स में होता है, कुछ चीज में होता है। अच्छा, अभी ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कौन सा फूड सोर्सेस है, मतलब कौन सा फूड में आपको ये मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट का 2 टाइप्स है, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इजीली ये हजम हो जाता है और ये सॉल्युबल है, वाटर में, पानी में सॉल्युबल है। पर जो कॉम्प्लेक्स है जैसे स्टार्च, ये स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिंपल है ग्लूकोज, मैं ऊपर लिख रही हूं। आपको पता है हमारे बॉडी में जो स्टार्च होता है ना, उसे तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है। क्या नाम है उस एंजाइम का? ये एंजाइम आपको पैनक्रियास में मिलेगा, पैनक्रियाटिक जूस में, और ये एंजाइम सबसे ज्यादा मिलता है आपके माउथ में, सलाइवा में, ठीक है, जिसका नाम होता है टायलिन। पर और एक नाम है इसका, एमाइलेज। एक मजे की चीज बताओ, ये जो AAC वाला पार्ट है ना, ये हर एंजाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा एंजाइम में दिखाई देगा। कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, व्हिच आर प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स, जो प्रोटीन को तोड़ता है।
पर बाकी बहुत सारा एंजाइम में आपको ये ASE वाला पार्ट मिलेगा, सुक्रेज, गैलेक्टेज, लैक्टेज, लाइक दैट। तो ये ASE वाला पार्ट जिसमें रहेगा वो एक एंजाइम है। अभी हम देख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है ये, आपके सलाइवा में जो टायलिन एमाइलेज होता है वो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इस वजह से जब आप ब्रेड को च्यू करते हो ना ज़्यादा देर तक, या चपाती को च्यू करते हो, आपको स्वीट जैसा टेस्ट मिलता है, क्योंकि वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, आपके मुंह में उसका स्वाद आ जाता है, शुगरी पार्ट आ जाता है। तो ये गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कौन से लोगों को ज्यादा लेना चाहिए खाने में? आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जो लोग ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जो मैनुअल लेबर जो करते हैं, मतलब आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे जो मेसन होते हैं, जैसे रिक्शा पुलर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लेबरर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादा करके कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है। अब मज़े की बात ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट में जितना एनर्जी हमें देता है, उससे डबल से भी ज़्यादा हमें फैट से मिलता है, ऑलमोस्ट डबल हमें फैट से मिलता है। तो ये फैट से इतना एनर्जी मिलता है, तो हम फैट ही ले सकते हैं ना खाने में, फैट क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते ज्यादा? वो एक लिमिट से कंज्यूम करना पड़ता है, इससे ज्यादा आप कंज्यूम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ज्यादा फैट को कंज्यूम करने से ये आपके बॉडी के एडिपोज नाम की एक टिश्यू है, ये टिश्यू में एक फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये एक टिश्यू में फैट ग्लोब्यूल्स बन के ये तो स्टोर हो जाने वाले हैं, और ये अगर स्टोर हो गया तो आप मोटे हो जाओगे, सब कहेंगे मोटापा, है ना। तो ये कंडीशन को मोटापा बोलते हैं, मतलब ओबेसिटी बोलते हैं, हिंदी में मोटापा बोलते हैं, इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं। तो ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज अ कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन बिकम्स एक्सेसिवली फैट। एक आदमी एक कंडीशन में बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, तो ओबेस हो रहा है। ओबेसिटी में एक पर्सन क्या हो जाता है? ओबेस हो जाता है। तो हम लोग मोटे लोग को ओबेस बोलते हैं। तो यहाँ स्टोरी ये है कि ओबेसिटी क्या है? एक कंडीशन है, और ओबेस क्या है? एक उसका रिजल्ट है एक इंसान जो एक्सेसिवली फैट हो गया। किस वजह से? ज्यादा अगर आप फैट कंज्यूम करोगे वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू में, फैट ग्लोब्यूल्स में स्टोर हो जाएगा। इससे क्या होता है? सपोज आपको ओबेसिटी हो गया, इससे बहुत सारा डिजीज होने के चांसेस है, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है अनकंट्रोल्ड वेट से, हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो हम लोग नहीं चाहेंगे ना हमें हार्ट अटैक हो जाए, या हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हमारा डायबिटीज हो जाए, या हाइपरटेंशन हो जाए। ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन को आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। मतलब आप लाइफस्टाइल अच्छे रखो, आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करो, आप ओबेस नहीं होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये गया हमारा फैट ज्यादा ना खाने का रीजन। अभी अगर एकदम नहीं खाए, सोचो एकदम फैट कंज्यूम नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम होगा? एकदम ही फैट नहीं ले रहे क्योंकि मुझे तो जीरो फिगर बनाना है। अभी क्या है कि इससे प्रॉब्लम ये है कि आपके आई साइट वीक हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि आपके जो स्किन है वो रफ हो जाएंगे। तो हमारा स्किन और आंखों के लिए भी हमें थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में फैट लेना जरूरी है। हर न्यूट्रिएंट, हर पौष्टिक सब्सटेंस हमें लेना जरूरी है।